मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स। ओके, सम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन नोमेनक्लेचर देंगे। ओके, write the IUPAC name of the following aldehydes and ketones whereas possible also common name. Write the structure of the following compounds. 12.4 question NCERT. CS3 CO CH2 whole 4 CS3. Starting 1 2 3 4 5 6 7 4 1 5 6 total 7 carbon heptane 2-on. So IUPAC name is heptane 2-on. Okay, now come to the next. CS3 CH2 CHBr CH2CH CH2CH CS3. okay, CHO. What is the name of this structure? That is 1 2 3 4 5 6. That is 4 bromo 2 methyl or 6 carbon aldehyde is hexagonal. 4 bromo 2 methyl hexagonal या hexane 1 al. Next, third is CS3 CH2 whole 5 CHO. CS3 CH2 whole 5 CHO. तो टोटल कार्बन 5 1 6 1 7 हेप्टेनल नहीं। pH 4 phenyl. Okay, CH double bond CHO. What is IUPAC name? 1 2 3 3 phenyl 3 carbon prop 2 in 1 al. 3 phenyl prop 2 in 1 al. CHO ये साइक्लोपेंटेन हो गया और 1 कार्बन aldehyde is कार्बल्डिहाइड. तो its IP name is cyclopentane कार्बल्डिहाइड. पेंटेन कार्बल्डिहाइड. ओके, pH 4 phenyl C double bond O फिर phenyl. Common name is diphenyl ketone and IUPAC name is benzophenone. Okay. Draw the structure of the following. Write the IUPAC name of the following ketone and aldehyde. IUPAC name बताना. तो हो गया, ठीक है. अब हम चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ aldehyde. Now come to the topics.
preparation of aldehydes and ketone. Preparation of aldehyde and ketone. How can you prepare aldehyde and ketone? It is prepared by the oxidation of alcohol. When primary alcohol undergoes mild oxidation in presence of CrO3 or PCC to give aldehyde, secondary alcohols undergoes oxidation similar condition to give ketone. Primary alcohol RCH2OH oxidation with CrO3 chromic anhydride and or PCC. PCC का फुल फॉर्म क्या होता है? Pyridinium chlorochromate. This is the mild oxidizing agent. तो आपको aldehyde बनेगा H2O and you get aldehyde only. लेकिन यहाँ पे अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्काइन KMnO4 ले लेंगे और K2Cr2O7 लेंगे तो aldehyde बनेगा, लेकिन aldehyde फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं CH3CH2CH2OH ऑक्सीडेशन करेंगे CrO3 और PCC के प्रेजेंस में आपका बन जाएगा CH3CH2CHO प्लस वाटर प्रोपेनॉल, ओके। डायरेक्ट aldehyde बनाना तो हम कर सकते हैं इसमें। सेकंड, when secondary alcohol, this is your secondary alcohol, okay, oxidize with CrO3 और PCC pyridinium chlorochromate, ये ऑक्सीडाइज करके देख लीजिए, H2O निकलेगा, एलिमिनेट होगा और बन जाएगा R C डबल बॉन्ड हो, कीटोन मिलेगा, आपका कीटोन बन, ओके। और जस्ट फॉर एग्जांपल CH3OH CrO3 और PCC ऑक्सीडेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे H और O, H2O एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनली बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, दैट इज कॉल्ड एसीटोन और प्रोपेनॉल, ओके। सेकेंड मेथड देखिए, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, by dehydrogenation of alcohol. When vapor of primary alcohol passed over heated copper at 573 Kelvin, dehydrogenation reaction takes place and aldehyde is formed. When vapor of primary alcohol RCH2OH, this is primary alcohol, passed over copper at 573 Kelvin, H2 is eliminated and you get aldehyde, CHO, aldehyde will be formed. Okay. Suppose you take example CH3CH2CH2CH2OH, ब्यूटेनॉल का अगर आप कॉपर 573 पे पास करेंगे तो ब्यूटेनॉल बन जाएगा। क्या बनेगा आपका? ब्यूटेनॉल। CH3CH2CH2CHO, that is called butanol. Okay.
Now similarly, vapor of secondary alcohol passed over heated copper at 573 Kelvin to give ketone. This is your secondary alcohol. Secondary alcohol passed over copper 573 Kelvin. H2 is eliminated and you get RCOR, ketone will be. Okay, just for example, CH3, CHOH, CH2, CH3, that is called butane 2-ol. Butane 2-ol. Okay, passed over copper 573 Kelvin. H2 is eliminated and you get CH3, CO, CH2, CH3, that is called butane 2-ol. इसी में करना है butane 2-ol. ओके, अल्कोहल का हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड बनता है प्राइमरी अल्कोहल का। सेकेंडरी अल्कोहल का सिमिलर कंडीशन पे ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है। सिमिलरली डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर 570 हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन पे पास करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम कॉपर 570 हीटेड कॉपर 573 केल्विन के ऊपर पास करेंगे तो कीटोन बनेगा। ओके, now come to the ozonolysis of alkene, third method, by ozonolysis of alkene. alkene का ओजोनोलिसिस करेंगे। ओके, तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। इथीन का ओजोनोलिसिस करोगे तो इथीन ओजोनाइड बनेगा, उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। This is ethene O3, हम इस तरह लिख सकते हैं O3, ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा इसमें, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को बोलेंगे इथीन ओजोनाइड। इथीन ओजोनाइड। अब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे H plus H2O। अब देखिए यहां से बॉन्ड इस तरह टूटेगा और H2O और O मिलके क्या बना देगा H2O2 और क्या बन गया आपका बच गया HCHO, HCHO, 2 molecules of formaldehyde, twice HCHO, formaldehyde will be formaldehyde बनेगा। दिस इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन, 2 कार्बन से 1 कार्बन में कन्वर्ट करता है। दिस इज आल्सो अ स्टेप डाउन रिएक्शन। इसी तरह सिमिलरली अगर हम प्रोपीन को करेंगे, प्रोपीन को ओजोनोलिसिस करोगे तो प्रोपीन ओजोनाइड बनेगा। ओजोनोलिसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। CH3 CH CH2 ये बन गया आपका, ये बना आपको प्रोपीन ओजोनाइड। अब इसको हाइड्रोलिसिस करोगे देखिए यहां पे
CH3CHO, H2O and O मिलके क्या बन गया? H2O2। तो अब ये बन जाएगा आपका CH3CHO, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल और दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO फॉर्मल्डिहाइड, यानी आपके दो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHO प्लस HCHO, इथेनॉल बना एंड मिथेनॉल बना। ओके, इसी तरह ब्यूटेन का करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, that is called ब्यूटेन। ओके, तो क्या बनेगा आप देख लीजिए, प्लस O3 CH3 CH CH CH3, ये बन गया ओजोनाइड कंपाउंड बन गया। अब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, H प्लस H2O, देखिए यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बनेगा? CH3CHO CH3CHO, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल बन जाएगा, ट्वाइस CH3CHO, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल और H2। ओके, तो आज मैंने आपको तीन मेथड बताया एल्डिहाइड कीटोन का नोमेनक्लेचर। अगर नेक्स्ट क्लास में फिर मैं और मेथड आपको बताऊंगा एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू।